You look wow. अरे यार जहाँ पहले ब्लैक लेडी हुआ करती थी आपके ऐसी खूबसूरत से अब इतने सारे अवार्ड्स हो गए तो आपके लिए तो कहीं ना कहीं महत्व खत्म होता जा रहा है अवार्ड्स का? No, I think you know, we all work very hard, and appreciation in any form is always welcome. And I think awards, I mean, that's what we live for. That's what we want to. You know, I think it's a way of appreciating the hard work that we put in. So it's great. दीपिका भी अंदर एक इंजर्ड हुआ है. Do you know about it? जब अंदर थे? नहीं, क्या हुआ? I don't know. अच्छा 2012 की बात करें तो 2012 में जहाँ एक तरफ यू नो सक्सेसफुल फिल्मों की झड़ियाँ लगी रही तो वही दूसरी तरफ हमने कई सारे लेजेंड्स को भी खोया है. आप किस तरीके से 2012 को देखते हैं? Yes, I agree that for me personally it was a great year because of the success of Cocktail, as well as I signed some really interesting films. So for me personally it's been a great year, but yes, I think in terms of what you said, we have lost a lot of people, a lot of legends, if I may say, and that's a sad thing. But hopefully 2013 is something that we all look forward to. What are you hoping from 2013? Any resolution that you have made for a new year? No resolution. I think I'm more than anything, I think I'm very thankful because 2012 was an amazing year for me personally, and I just hope that 2013 will be as good or even better. Deepika, I can't know. Miss Deepika. अच्छा, what is the status of Ramlila? What is the status? Status The status is that we're shooting right now. Miss Deepika. कितना शूट हो चुका है अगर कुछ बताना चाहिए? ये जवानी है दीवानी. How much it relates to you? Like ये जवानी है दीवानी. Like Cocktail, that character actually suited you. Like so, how much? Yeah, actually, Ye Jawani is again very similar to me in person. Like Veronica was not. I think Veronica as a character, as a person, is very different from how I am personally. But Ye Jawani is very similar to how I am. Miss Deepika, एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे मैं. Miss Deepika. He's great to work with. Miss Deepika. there are many reports of you and Anushka कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, so आप सामने हमारे हाथ आपको क्या लगता है? अब वो आपके अंदर की बात होती है पता चलती नहीं आप लोग There's no truth to this. You know, and I always wish her well. मिस दीपिका, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा अपनी मुहिम के लिए. मैं जी न्यूज़ ने एक मुहिम चलाया बॉडी डोनेशन, बॉडी ऑर्गन्स के डोनेट के लिए. आपने भी अपनी आँखें डोनेट की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कब? आपने अपनी आँखें डोनेट की है? नहीं किया. कब? आप वेबसाइट पे आपके अपडेट किया हुआ है, यू आर डोनेटेड टू आईज. आप मुझे ऑलरेडी मरवा रहे हो. नहीं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बॉडी डोनेशन, बॉडी ऑर्गन New Year डोनेशन? plans क्या आपके? New Year plans. New Year plans. Coming back to your topic, when I become old, if my eyes are in good condition, I will be more than happy to donate my eyes. न्यू ईयर प्लान्स What's your name? Ranbir Kapoor or Ranveer Singh? Ranveer Singh. You're working with both right nowadays. Yeah. Ramlila and Ye Jawani Diwani. So, वही क्वेश्चन इसका है. Question क्या है? कि आपका नाम ऐसा जुड़ रहा है. No comment. He's a great actor. 100 crores last one बोला इधर से. आपको gift देता, what is the gift that you want? If Santa would give you a gift. What gift do you expect? this year I will give Santa a thank you note for giving me a lovely 2012. And would you be someone's Santa? I don't think I'm. I don't know. Would you give anyone something? I don't think I'm deserving of that. No, I don't know. So what's your plan of New Year? Last two questions, please. What Last two questions. What are your plans for Last two questions. No plans. I'm going to be shooting this on the 31st. This is Naeem Khan. I've been styled by Anita Shroff. Okay. New Year wish? To all the viewers, a very very happy New Year. Thank you very much. Indian cinema, if I ask you to personify Indian cinema and then ask you to wish Indian cinema a very 100 happy year birthday, how would you do it? I don't think it'll ever be enough to anything that I say or anything that anyone does will not be enough to sum what I think to put the whole thing together. It will never be enough. I think Indian cinema has influenced people's lives in many ways. So yeah. Thank you very much. एक visual scene. एक visual scene. I can't say anything right now. It's too soon. I can only talk about Race 2 because it's releasing next month. तो उसी
इंडस्ट्री के बारे में कुछ बता दीजिए। I'm meeting you all very soon to talk about that. अच्छा एक बार दीपिका जो बता सकती हूँ वही आप लोग अगर इसके सामने और हमें सवाल करने के हाथ रहो, सवाल क्या है तुम्हारा? मैंने उंगली किया, सवाल पूछा नहीं उसका। उसने क्या बोला? अरे बैठो नहीं है। उसने क्या बोला मालूम है? तो दोबारा भी पूछा, क्या सवाल है आपका? मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कंफ्यूज कर दिया। थोड़ा लाउड बोल रहे हैं। अब कम आगे आकर पूछा गया। संतोष भाई साइड होगा। गाड़ी निकली जी ईशान तेरा बूम बहुत ऊपर है यार। मेरा पहला अवार्ड अभी भी जीता हूँ तो आई एम स्टिल ओवरवेल्म्ड। अभी भी पूरी तरह पकड़ा नहीं है। आई एम नॉट गॉट यूज्ड टू द फैक्ट दैट आई एम एन अवार्ड विनर। मैं अवार्ड्स पहले अटेंड कर चुका हूँ विद माय फादर, विद माय फ्रेंड्स। आई हैव बीन बैक स्टेज और पर पहले कभी स्टेज पे खड़ा नहीं हुआ। तो आई एम रियली एंजॉइंग द फीलिंग एंड आई एम हैप्पी कि लोगों को मेरा काम पसंद आया, हमारी पिक्चर इतनी पसंद आई, जितना सोचा था उससे उम्मीद से कहीं ज़्यादा पसंद आई। तो आई थिंक दिस इज़ एन अवार्ड फॉर ऑल द हार्ड वर्क वी ऑल पुट इन टू इशकजादे। आई थिंक दिस इज़ एन अवार्ड फॉर द होल क्रू एंड द होल कास्ट। अवार्ड्स क्या मायने रखते हैं आपके जीवन में? कितना महत्वपूर्ण है अवार्ड्स आपके लिए? लेडीज़ फर्स्ट, फिर आप करें। साल खत्म होते अवार्ड भी मिल गया, पिक्चर भी सुपर जी जी I don't believe in making resolutions क्योंकि मैं कभी ओके यू कंटिन्यू प्लीज कैसे कंटिन्यू करूँ? वो चलता है ये I don't make resolutions है because मैं कभी निभा नहीं पाता हूँ resolutions। तो I take each day at a time, one day at a time. That is the way I believe in living life. जहाँ तक losses का सवाल है, I think with the highs come the lows. किसी भी इंडस्ट्री में ये होता है। We lost somebody like Mr. Yash Chopra और मैं बॉम्बे में था नहीं जब उनका देहांत हुआ and I was shooting a film for his production called Aurangzeb. So these kind of situations make you realize how fickle life is. It just makes you realize कि यहाँ पे nothing is permanent. हर चीज़ आती जाती रहती है। आप बस अपना सर नीचे रखिए और काम करते जाइए। जी इन्होंने पूछा था इनसे, फिर आपके पास अवार्ड्स क्या मायने रहते हैं आपके जीवन में? कितना महत्वपूर्ण है अवार्ड? जब आपके काम को सराहा जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं इसलिए आपको अवार्ड मिल रहा है। या अगर जूरी अवार्ड होता है तो लोगों विद इन द इंडस्ट्री आपके पीयर्स को आपका काम पसंद आया तो अच्छी बात है। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड वर्क इवन मोर हार्ड। आपको और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको और प्रशंसा मिले और अवार्ड मिले। तो मायने कॉन्फिडेंस के हिसाब से बहुत। राखी सावंत से इंटरेक्शन कैसा है? मैं अभी भी बौखला चुका हूँ, मतलब अभी भी बौखला रहा हूँ, अभी भी हिला हुआ हूँ। 2013 के इवेंट में परफॉर्म करने वाले तो किस तरह से तैयारी हो रही है वो इवेंट के लिए? इस वक्त तो मैं शूटिंग कर रहा हूँ पिक्चरों की। अभी मैं शूटिंग कैसी चल रही है? रणवीर has started shooting. I've just about started shooting. तो मेरा एक ही दिन हुआ है। आज दूसरा कल मेरा दूसरा दिन है, सॉरी। तो अभी जी मुझसे ज़्यादा तो आप एक्साइटेड लग रही हैं। कितनी सलमान को हमने स्टेज पे काफ़ी उनको ये कहा कि नहीं, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बेस्ट ऑफ लक नहीं कहा। मैंने कहा मैं आज स्टेज पे खड़ा हूँ तो एक ही आदमी की बदौलत है कि उन्होंने ये रियलाइज़ कराया मुझे कि मुझे एक्टिंग करनी शायद आती है। He made me realize a dream that I didn't even know I had. So that's some जी अभी मिला, उनके साथ ही बैठ के आ रहा, इसलिए लेट पहुंचा, उनके साथ ही बैठा हुआ था। तो उनको मैंने ये अवार्ड जाके दिखाया तो वो हाथ मिला उन्होंने और हंस रहे थे, स्माइल कर। उनसे यही पे मिला था जब वो शायद विवान से बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा नॉमिनेटेड हूँ, जीतूंगा इस बार होपफुली। तो जीत भी गया तो जाके दिखा भी दिया उन्होंने।
अब ऑडियंस का प्यार यार, अगर ऑडियंस का प्यार रहेगा तो अवार्ड्स आते रहेंगे, क्योंकि दे आर द फाइनल जज। हम पिक्चरें बनाते सिर्फ लोगों के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए, उनका मनोरंजन। अब कम आगे आकर पूछा गया। संतोष भाई साइड गाड़ी निकली ईशान तेरा बूम बहुत ऊपर है यार। मेरा पहला अवार्ड अभी भी जीता हूँ तो आई एम स्टिल ओवरवेल्म्ड, अभी भी पूरी तरह पकड़ा नहीं है, एंड आई एम नॉट गॉट यूज्ड टू द फैक्ट दैट आई एम एन अवार्ड विनर। मैं अवार्ड्स पहले अटेंड कर चुका हूँ विद माय फादर, विद माय फ्रेंड्स, आई हैव बीन बैक स्टेज एंड, और पर पहले कभी स्टेज पे खड़ा नहीं हुआ, तो आई एम रियली एंजॉयिंग द फीलिंग एंड आई एम हैप्पी कि लोगों को मेरा काम पसंद आया, हमारी पिक्चर इतनी पसंद आई, जितना सोचा था उससे उम्मीद से कहीं ज़्यादा पसंद आई। तो आई थिंक दिस इज़ एन अवार्ड फॉर ऑल द हार्ड वर्क वी ऑल पुट इनटू इशकज़ादे। आई थिंक दिस इज़ एन अवार्ड फॉर द होल क्रू एंड द होल कास्ट। अवार्ड्स क्या मायने रखते हैं आपके जीवन में, कितना महत्वपूर्ण है अवार्ड्स आपके लिए? लेडीज़ फर्स्ट, फिर आपका। साल खत्म होते अवार्ड भी मिल गया, पिक्चर भी सुपर जी जी। I don't believe in making resolutions, क्योंकि मैं कभी ओके यू कंटिन्यू प्लीज। कैसे कंटिन्यू करूँ? वो चलता है ये। I don't make resolutions है because मैं कभी निभा नहीं पाता हूँ resolutions, तो I take each day at a time, one day at a time. That is the way I believe in living life. जहाँ तक losses का सवाल है, I think with the highs come the lows. किसी भी इंडस्ट्री में ये होता है। We lost somebody like Mr. Yash Chopra, और मैं बॉम्बे में था नहीं जब उनका देहांत हुआ, and I was shooting a film for his production called Aurangzeb. So these kind of situations make you realize how fickle life is. It just makes you realize कि यहाँ पे nothing is permanent. हर चीज़ आती जाती रहती है, आप बस अपना सर नीचे रखिए और काम करते जाइए। जी, इन्होंने पूछा था इनसे, फिर आपके पास अवार्ड्स क्या मायने रहते हैं आपके जीवन में, कितना महत्वपूर्ण है अवार्ड? जब आपके काम को सराहा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं इसलिए आपको अवार्ड मिल रहा है, या अगर जूरी अवार्ड होता है तो लोगों विद इन द इंडस्ट्री आपके पीयर्स को आपका काम पसंद आया तो अच्छी बात है। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड वर्क इवन मोर हार्ड। आपको और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको और प्रशंसा मिले और अवार्ड मिले, तो मायने कॉन्फिडेंस के हिसाब से बहुत। राखी सावंत से इंटरेक्शन कैसा है? मैं अभी भी बौखला चुका हूँ, मतलब अभी भी बौखला रहा हूँ, अभी भी हिला हुआ हूँ। 2013 के इवेंट में परफॉर्म करने वाले, तो किस तरह से तैयारी हो रही है वो इवेंट के लिए? इस वक्त तो मैं शूटिंग कर रहा हूँ पिक्चरों की। अभी मैं शूटिंग कैसी चल रही है? रणवीर स्टार्टेड शूटिंग, आई जस्ट अबाउट स्टार्टेड शूटिंग, तो मेरा एक ही दिन हुआ है, आज दूसरा कल मेरा दूसरा दिन है, सॉरी। तो अभी जी मुझसे ज़्यादा तो आप एक्साइटेड लग रही हैं। कितनी सलमान को आपने स्टेज पे आपने काफ़ी उनको ये कहा कि ये सारी चीज़ें नहीं, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बेस्ट ऑफ लक नहीं कहा, मैंने कहा मैं आज स्टेज पे खड़ा हूँ तो एक ही आदमी की बदौलत है कि उन्होंने ये रियलाइज़ कराया मुझे कि मुझे एक्टिंग करनी शायद आती है। He made me realize a dream that I didn't even know I had. So that's some. जी अभी मिला, उनके साथ ही बैठ के आ रहा, इसलिए लेट पहुंचा, उनके साथ ही बैठा हुआ था, तो उनको मैंने ये अवार्ड जाके दिखाया तो वो हाथ मिला उन्होंने और हंस रहे थे, स्माइल कर। उनसे यहीं पे मिला था जब वो शायद विवान से बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा नॉमिनेटेड हूँ, जीतूंगा इस बार होपफुली, तो जीत भी गया तो जाके दिखा भी दिया उन्होंने। अब ऑडियंस का प्यार यार, अगर ऑडियंस का प्यार रहेगा तो अवार्ड्स आते रहेंगे, क्योंकि दे आर द फाइनल जज। हम पिक्चरें बनाते सिर्फ लोगों के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए, तो उससे ज़्यादा मायने कोई चीज़ नहीं रख सकती मेरे दिमाग में, एटलीस्ट पर्सनली फॉर मी। अर्जुन, धमाकेदार जैसे आपकी परफॉर्मेंस रही, जी एक विश दे दीजिए न्यू ईयर हमारे ऑडियंस को परमा स्टाइल में। परमा स्टाइल में? परमा मेरी बॉडी से निकल के जा चुका है, इस वक्त मैं बाला बनने की कोशिश। अच्छा, तो नहीं, वो मैं रिवील इतनी आसानी से नहीं करूँगा।
नहीं मैं परमा की तरह करता हूँ। तो क्या सबको यूनिवर्सली विश करना है सारे? बूम्स डाउन। बूम क्या होता है? पता है। चलिए बोलते हैं। आप सबको परमा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। ये भी था सब। Thank you everybody. Sorry to keep you waiting. Happy New Year. मैं तो अपने डैड को जाके अभी दिखाने वाली हूँ सबसे पहले, वो आ नहीं पाए तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जैसे मुझे अवार्ड मिलेगा, अगर मिलेगा तो मैं उनके पास आके उनको दिखाऊंगी, तो आई एम गोइंग देयर। यही हुई कि मुझे पता था कि मैं उनको क्यों अवार्ड दे रही हूँ और उन्हें पता था कि उन्हें क्यों नामंत्रित किया गया था मुझे अवार्ड देने के लिए। प्रियंका इतने सारे अवार्ड जीत चुकी हैं। आज अवार्ड भी आपको मिल गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस कैरेक्टर के बारे में स्पेशली, और आर यू रेडी टू टेक ऑल द अवार्ड्स नेक्स्ट ईयर? Well, I don't know about that. पहला अवार्ड मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा because the first awards of the season, and yes you're right, झिलमिल मेरे लिए बहुत मुश्किल कैरेक्टर रही है। You know, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले कर पाऊँगी, but it happened and I'm very very happy कि you know ये appreciation मुझे मिली। प्रियंका इतने सारे अवार्ड्स हर साल आप जीतती जाती हैं, तो आपके लिए अवार्ड्स की अहमियत क्या है, मतलब कितने इंपॉर्टेंट है? और जहाँ एक तरफ देखा जाए पहले केवल एक ब्लैक लेडी होती थी जिसकी लोगों को चाहत होती थी, अब इतने सारे अवार्ड्स हो गए। इतने सारे अवार्ड्स हो गए, वो हमारी तो गलती नहीं है, हम तो लेने के लिए पहुंच जाएंगे। और अवार्ड्स की अहमियत हमेशा बढ़ती रहती है, एक तरह का इंकरेजमेंट होता है। जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, तो अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि आपने काम अच्छा किया। क्या कर रही हूँ मैं 13 में? शूटिंग कर रहे हो? शूटिंग, हाँ हाँ, ओके ओके, शूटिंग कर। गुंडी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, and you working with Arjun and you Krish also. Yes, yes. Okay. Miss Priyanka, एक सेकेंड। 2012 मेरे लिए बहुत ही अच्छा साल गया। I had some amazing films that came जो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, चाहे वो डॉन 2 हो, अग्निपथ हो या बर्फी हो, मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहेंगे। एंड अगले साल भी बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं मेरी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट देम। देयर इज अ रीमेक ऑफ जंजीर ऑफ कोर्स, देन देयर इज गुंडे, देयर इज माय बायोपिक ऑन मैरी कॉम, देयर इज क्रिश 3, और मेरी सारी फिल्मों से आई एम वेरी एक्साइटेड। प्रियंका अगर 2012 की बात करें तो 2012 में जहां 100 करोड़ की फिल्मों की झड़ी लगी, तो वहीं पे माय न्यू ईयर प्लान, सॉरी my new year plans are to spend time with my father this time. प्रियंका अगर 2012 की बात करें तो जहां एक तरफ बड़ी-बड़ी फिल्मों की was fantastic. As you're saying, the 100 crore club. 100, you've been scoring 100 crores. I mean, how do you look at the 100 crore club, and who do you think is the front runner in 100 crore club right All now? your films have done 100 crore business. I think it's really unfair to put that kind of pressure on films. अगर वो 100 करोड़ फिल्म ना भी हो तो फिल्म की सक्सेस उसके रेशियो से देखी जाती है। जी हाँ, it's great that films make that kind of money and I'm very happy that mine have. But I think we need to get over this fad of judging a film by saying it's 100 crore. I think एक फैशन का बोलने का तरीका बन गया है और ये गलत है। प्रियंका अगर 2012 की बात करें तो एक तरफ जहां बड़ी-बड़ी फिल्में और 100 करोड़ की फिल्में निकली तो वहीं हमने कई सारे लेजेंड्स को भी खोया है। दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा गायिका भी बन गई थी इसी साल में। तो किस तरीके से देखती हैं आप 2012 किस तरीके से रहा बॉलीवुड के लिए? आई थिंक 2012 एक बहुत मिक्स्ड ईयर रहा है हम सब के लिए। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ लेजेंड्स दिस ईयर, जो आई थिंक बॉलीवुड के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा लॉस रहेगा। उसके साथ ही फिल्म्स हैव बीन प्रेसिडेंटली सक्सेसफुल, दे हैव बीन इनक्रेडिबली सक्सेसफुल, और वो बहुत अच्छी बात रहेगी। मेरे लिए भी पर्सनली माई करियर हैज़ स्प्लिट, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कंफ्यूज साल रहा है। मिस प्रियंका एक सवाल हमारी ना मुहिम करिए। मिस प्रियंका गाइस 1 सेकंड। और एक बार बधाई। Oh, I can't sing for you all. I can't till I perform live, guys. I'm really sorry. But मैं New Year's resolution बनाती नहीं हूँ because I always break them. मिस प्रियंका
वेश 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 प्रियंका वेश प्रियंका क्या हुआ? कार्तिक बैठना वसीम भाई प्रियंका साल खत्म होते ही आप अवार्ड मिल गया है। एक मिनट पहला अवार्ड है, पहले अवार्ड मुझे एक्टिंग के लिए पहली बार मिला है, बेस्ट डेब्यू मेल एक्टर। इट फील्स ग्रेट इसलिए क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज दे एक्सेप्टेड अ पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। रियली मीन्स अ लॉट। या it's awesome. I think it's a winning combination. Yami also got the award and she's a fabulous actor. She's a pretty good actor, in fact pretty and a good actor. 2013 Of course Yami is there in Hamara Bajaj. No, I don't know. I really don't know. कि casting अभी होनी है. I really don't know, seriously. अभी नौटंकी साला complete हुई है. 2012 has been a good year for you, but it had a negative effect as well. There was one director, Kunal Kohli, who was not happy with the way you rejected his film. So क्या कहना चाहेंगे उस पर? कितना बोल चुका उस बारे में यार, पुरानी बात हो गई है, नया क्वेश्चन पूछो ना यार. I'm nobody to comment who's an A-lister, who's not. I'm working with a newcomer in the next one. किस तरीके से इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा काम भी किया है, बहुत सारे लोगों को खोया भी है. तो किस तरीके से आप देखते हैं 2012? I think 2012 बहुत ही इवेंटफुल ईयर रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए. बहुत अच्छी फिल्में आई हैं. इट्स द बेस्ट, आई थिंक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा, जहाँ पर हर तरह की फिल्म चल रही है, छोटी फिल्मों, बड़ी फिल्मों, एंटरटेनिंग फिल्मों, किसी भी तरह फिल्म हो. एंड बहुत सारे डेब्यूज पहली बार हुए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. इतने डेब्यूज आज तक नहीं हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी लॉस्ट लॉट ऑफ लेजेंड्स दिस ईयर. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इवेंटफुल ईयर एंड लेट्स सी 2013 कैसा रहता है. एंड आई कैन जस्ट विश हैप्पी न्यू ईयर. हमने एक मुहिम चलाई है जी न्यूज़ की तरफ से डोनेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अपने बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करना चाहेंगे आगे? एब्सोल्युटली, आई थिंक एवरी काइंड ऑफ डोनेशन शुड हैपन. अगर आप समाज में रह रहे हैं और कुछ सोचते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, यू शुड ऑलवेज बी अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड थिंक अबाउट. कौन सा पार्ट डोनेट करना चाहेंगे वैसे आप? आई थिंक मेरी आंखें भी, मैंने भी ऑपरेशन करा था लासिक का, पहले मैं स्पेक्स पहनता था, आंखें डोनेट कर सकता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. In 2013, I'm not a resolution kind of guy, so I think आप किसी भी दिन resolution, चाहे साल का दूसरा महीना हो, वहाँ भी कर सकते हैं. It's just that I think 2013 for me it will be to work more harder because मुझे ऐसा लगता है कि challenge begins now after winning the best debut actor. उससे पहले opportunity मिली थी, that was great, but now I think I'll work hard and let's see how it goes. इसी साल में आपने डेब्यू भी किया है, तो 100 साल होने की खुशी में आप कैसे विश करेंगे इंडियन सिनेमा को? हैप्पी बर्थडे. इंडियन सिनेमा को विश करेंगे. Okay, of course this is the 100th year of Indian cinema, so congratulations, a very happy birthday to Indian cinema. और इंडियन सिनेमा ने अपने 100वें साल में, अपनी शताब्दी में कई नए एक्टरों को जन्म दिया है. मैं उनमें से एक हूँ, so thank you so much इंडियन सिनेमा. आयुष्मान अभी आप कैसे? पुरानी बाइट्स में लोग. Okay, I'll wish you a happy new year with of course same to you Ayushman. Same to you. पानी दा रंग देख के अखियां चो हंजूर उड़ दे. माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझना ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, रांझना ना आया. हैप्पी न्यू ईयर. बस मैम आप मैम प्रियंका, या प्रियंका, यस प्रियंका आप प्रियंका प्रियंका आप मत कर रहे. अरे पीछे से अदिति जस्ट अदिति सामने, अदिति ऊपर.
थैंक यू। आगे बात और लेके आगे सर सामने आदि सर यहाँ देखिए आदि सर यहाँ पे समीर 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 सर लेफ्ट में आप लड़की से डरते हैं तो कदम लोग हट जाओ। कतरीना फोटो 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 मैंने फोटो फोटो कतरीना वो ए पीछे का भीड़ क्लियर अरे पीछे का भीड़ कैटरीना आप कैटरीना आप कैटरीना आप कैटरीना कैटरीना आप कैटरीना ऊपर इस तरीके से बुलाओगे तो नहीं आओ आपको नहीं उसको उसको वो गया अभी आपके साथ आया था ना वो साजिद भाई यहाँ पे सही आई सही सामने सर अरे क्या बात है क्या बात जरीन खान यहाँ पे सेंटर सेंटर जरीन सामने जरीन जी यहाँ पे मैम सेंटर मैम सेंटर जरीन जी बिल्कुल सामने यहाँ जरीन मैम सेंटर जरीन मैम सेंटर में जरीन